Dear students, today we are going to start Maths Part 2, Chapter number 1. Name of the chapter Differentiation, Miscellaneous Exercise First. Question number 2. Solve the following. First one, f of x equal to minus x, minus 2 is less or equal x is less than 0, f of x equal to 2x, 0 is less or equal x is less or equal to f of x equal to 18 minus x entire upon 4, 2 is less than x is less than or equal to 7. So this is the function fx. So function fx has three values, minus x, 2x and 18 minus x upon 4, and they have different range, minus 2, 0, 0, 2, 2, 7. Another function in the same question, g of x equal to 6 minus 3x, 0 is less or equal x is less or equal to 2, and g of x equal to 2x minus 4 entire upon 3, 2 is less x is less or equal to 7. Let u of x equal to f of g of x, v of x equal to g of f of x, and w of x equal g of x. So u of x, it is defined as, means it is given in the question, f of g of x, and v of x, another function, g of f of x, and w of x equal to g of x. Find each derivative at x equal to 1 if it exists. That is, find u dash 1 means derivative of u of 1, v dash 1 that is derivative of v1, and w dash 1 means d by dx of w or dw upon dx at x equal to 1. If it doesn't exist, then explain why, means you have give the reason why it does not exist. So this is the question. This is functional question and it contains two main functions, f of x and g of x. They have different values. F of x has three different values while g of x has two different values, and we have to find u of x, that is f of g of x, v of x, g of f of x, and w of x, that is g of x. And then we have to find u dash 1, v dash 1 and w dash 1. Here dash means derivative of the same function u dash 1. This means du by dx at x equal to 1. V dash 1 dv upon dx at x equal to 1, and w dash 1 dw upon dx at x equal to 1. Now see the solution. And this question is very important question, very interesting question. So you can say this is important for competitive exams also. They can ask full question or any one part. Now see its solution. How to simplify. इसके solution के लिए हमें derivative के definitions, formulae सभी आने चाहिए, और functions के जो range यहाँ पर दिए हैं उसका बहुत ही ध्यान रखना है हमें, जिससे कोई भी mistake ना हो. So attention on the given range and attention on the given functions and also their definitions, means u of x, v of x and w of x. Now see solution. Since u of x equal to f of g of x, it is given. You can see here u of x equal to f of g of x, it is given, right? तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो u डैश 1 मीन्स अगर हम यहाँ पर u1 लिखते हैं ये डायरेक्ट हो जाएगा f ऑफ g of 1, और फिर हमें इसके वैल्यूज फंक्शन से
मिल जाएंगे उसके रेंज के अकॉर्डिंग। लेकिन हमें पूछा क्या गया u-1 मीन्स इसका डेरिवेटिव, इस पार्ट का क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव। एकदम इजीली समझ सकते हो u-1 मीन्स हमें पहले u-x निकालना होगा किसी भी स्थिति में। तो देखते हैं पहले कि u ऑफ x इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। you कैन से इट इज गिवन टर्म और ux is defined as f of g of x in the question. So for the solution, since u of x equal to f of g of x, differentiating with respect to x on both sides. तो चलो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u of x becomes u dash x equal to derivative of f of g of x f dash gx into d by dx of gx by composite function। देखो f ऑफ g ऑफ x इस पूरे का डेरिवेटिव, सिर्फ यहाँ पर एक डैश आएगा दैट इज f डैश gx इंटू d बाई dx ऑफ g ऑफ x, एंड d बाई dx ऑफ g ऑफ x क्या होता है, g डैश x। तो देयरफॉर u डैश x इक्वल f डैश gx इंटू g डैश x। ये हमें मिल गया u डैश x, वैल्यू ऑफ u डैश x। अब हम क्या करते हैं, देखो हमें फाइंड करना है u डैश 1, यहाँ पर देख सकते हो u डैश 1। नाउ पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स, तो देयरफॉर u डैश 1 इक्वल टू f डैश, यहाँ पर देखो f डैश एज इट इज g ऑफ x दैट इज g ऑफ 1, f डैश g ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई g डैश 1, क्योंकि जहाँ भी x है उधर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर x है यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ पर x है इधर 1 लिख दिया, और यहाँ पर x है इधर 1 लिख दिया। तो ये हमारा स्टेटमेंट या इक्वेशन हो जाएगा u डैश 1 इक्वल टू f डैश g ऑफ 1 मल्टीप्लाइड बाई g डैश 1 एंड लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। तो अब हमें देखिए यहाँ पर क्या क्या फाइंड करना है, हमें g डैश 1 की वैल्यू चाहिए और g ऑफ 1 की भी वैल्यू चाहिए पहले। तो हम सबसे पहले चलते हैं g ऑफ x पर। तो g ऑफ x इक्वल टू 6 माइनस 3x और इसकी रेंज है 0 इज लेस आर इक्वल x इज लेस आर इक्वल टू 2। एक बार हम वापस क्वेश्चन में चलना चाहते हैं कि gx की वैल्यू क्या है, यहाँ से देख सकते हो g ऑफ x इक्वल टू 6 माइनस 3x 0 इज लेस आर इक्वल x इज लेस आर इक्वल टू 2, क्योंकि देखो हमें g1 या g डैश 1 निकालना है। तो इसके लिए हमें रेंज कौन सी लेनी है, अगर हम ये सेकंड फंक्शन लेते हैं इट्स रेंज बिटवीन 2 to 7, राइट। तो 2 to 7 1 के इसके अंदर 1 नहीं आता 2 to 7 में, तो 0 to 2 इसके अंदर 1 आता है, क्योंकि हमें g डैश 1 फाइंड करना है, g ऑफ 1 फाइंड करना है। तो दिस इज द रीजन वी शुड टेक 6 माइनस 3x, वी शुड टेक 6 माइनस 3x एंड 0 इज लेस आर इक्वल x इज लेस आर इक्वल टू 2। तो इसके लिए ये रीजन है कि हम यहाँ पर g ऑफ x की कौन सी वैल्यू लेंगे वहाँ पर कंफर्म कर लेना जरूरी है। तो सिंस g ऑफ x इक्वल टू 6 माइनस 3x 0 is less or equal x is less or equal to 2. Therefore, g of 1 means put x equal to 1 equal to 6 minus 3 into 1. Therefore, g of 1 equal 6 minus 3 equal to 3 and let it be equation number 2. तो ये हमारे पास वैल्यू किसकी मिली, सिर्फ g ऑफ 1 की। तो अगर हम ये g ऑफ 1, ये देखो यहाँ पर g ऑफ 1 है इक्वेशन नंबर 1 में, अगर ये g ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमें इसका एक अलग रिलेशन मिलेगा जो होगा ये। तो देयरफॉर u डैश 1 इक्वल्स f डैश 3, क्योंकि हमें g ऑफ 1 की वैल्यू क्या मिली है 3, तो ये 3 हम यहाँ g ऑफ 1 की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो f डैश 3 इंटू g डैश 1, ये g डैश 1 एज इट इज है यहाँ पर g डैश 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ऐसा बोल सकते हो। एंड लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 3। तो u डैश 1 इक्वल टू f डैश 3 इंटू जी डैश 1, देखो यहाँ भी u डैश 1 है लेकिन ये f डैश g ऑफ 1 के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर g ऑफ 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए, क्या मिला 3। तो वी गेट u डैश 1 इक्वल्स f डैश 3 इंटू जी डैश 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ अब हमें देखो क्या वैल्यू फाइंड करनी है कि f डैश 3 एंड g डैश 1 ये दो वैल्यूज हमें चाहिए। तो इसके लिए अब f डैश 3
तो उसके लिए हमें पहले रेंज भी देखना होगा और फंक्शन भी। तो सिंस एफ एक्स इक्वल टू 18 माइनस एक्स अपॉन 4, 2 इज लेस एक्स इज लेस आर इक्वल टू 7, क्योंकि इसके अंदर 3, देखो 3 हमें निकालना है, तो 3 के लिए हमें रेंज भी यही लेनी होगी। तो पहले हम नोट करते हैं, फिर एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होगा। कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 18 माइनस एक्स अपॉन 4, 2 इज लेस एक्स इज लेस आर इक्वल टू 7 फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में जाकर के देख सकते हो या अभी यहाँ पर चेक कर सकते हो कि एफ एक्स की जो लास्ट वैल्यू दी थी, ये वैल्यू देखो 18 माइनस एक्स अपॉन 4, 2 इज लेस एक्स इज लेस आर इक्वल टू 7। तो इसके लिए ये वैल्यू हमने सेलेक्ट किया यहाँ पर। तो देखते हैं अभी, सिंस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 18 माइनस एक्स अपॉन 4, 2 is less x is less r equal to 7, and g of x equal to 6 minus 3x 0 is less r equal x is less r equal to 2, क्योंकि यहाँ पर g डैश 1 है, इसलिए 0 to 2 वाला रेंज लेना है, और ये f डैश 3 में निकालना है तो 2 to 7 वाला रेंज लेना है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग इट, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन वी गेट f dash x equal to derivative of 18 is 0, derivative of minus x is minus 1 upon 4. So this gives minus 1 upon 4. 2 is less x is less or equal to 7. Same range we have to write here. Now differentiating gx. So therefore g dash x equal to derivative of 6 is 0. Derivative of minus 3x is minus 3 into 1. It is equal to minus 3. And write the same range here. 0 is less or equal x is less or equal to 2. फिर से देख लेते हैं इसको कि f of x taken 18 minus x upon 4 and g of x 6 minus 3x according to their values means 3 and 1 के अकॉर्डिंग हमने रेंज को सिलेक्ट किया और उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन को लिया। Differentiating these two with respect to x on both sides, we get f dash x equal to 0 minus 1 upon 4 equal to minus 1 by 4, and g dash 1 means इसका डेरिवेटिव लिया तो g dash x equal to 0 minus 3 into 1 equal to minus 3, and let it be equation number 4. अब ये देखना है कि f dash x and g dash x ये हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल होते हैं, तो आगे देखते हैं इसको। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 f dash 3, देखो f dash x हमें मिल चुका है, अगर हम यहाँ f dash 3 रखते हैं कि f dash 3 का वैल्यू क्या होगा, तो देयर इज नो टर्म ऑफ x, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया कि f dash x इज माइनस 1 बाई 4। हम यहाँ कुछ भी रखें f dash 3, f dash 4, f dash 5, जो भी हमें ज़रूरत होगी यू कैन सब्सटीट्यूट, तो नो इफेक्ट ऑन f dash x। दिस इज द रीजन f dash 3 इक्वल टू माइनस 1 बाई 4, और वैसा ही g dash x, हमें यहाँ पर g dash 1 चाहिए, पुट x इक्वल टू 1, no term of x on the right hand side, therefore g dash 1 equal to minus 3, and let it be equation number 5. So f dash 3 equal to minus 1 by 4, g dash 1 equal to minus 3, and it is equation number 5, और ये हमें कहाँ से मिला, फ्रॉम इक्वेशन 4, ये दोनों टर्म से। यहाँ पर x इक्वल टू 3 रखा गया और यहाँ पर x इक्वल टू 1, बिकॉज वी नीड f dash 3 एंड g dash 1। तो f dash 3 हमें मिल गया minus 1 by 4 and g dash 1 minus 3, and let it be equation number 5. Therefore u dash 1 जो हमें पहले मिल चुका था f डैश g ऑफ 1 इंटू जी डैश 1, या हम यूं कह लें कि u डैश 1 इक्वल टू f डैश 3 इंटू जी डैश 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ये थर्ड इक्वेशन हमने इसको अज्यूम किया था। तो अब इनके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं कि f डैश 3 जस्ट वी गेट हियर f dash 3 is minus 1 by 4 and g dash 1 is minus 3. So minus 1 by 4 multiplied by minus 3 becomes 3 upon 4. So u dash 1 equal to 3 upon 4. ये एक वैल्यू हमें मिल गई कि u dash 1 means u dash 1 exists and its value is 3 upon 4. ये हमें अपना फर्स्ट आंसर मिला इस क्वेश्चन का कि u dash 1 equal to 3 upon 4. चलो अभी देखते हैं v के लिए कि v डैश 1 की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं और एग्जिस्ट होता है या नहीं। सिंस v ऑफ x इक्वल टू g ऑफ एफ एक्स, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, इट इज गिवन, यू कैन राइट हियर गिवन कि v ऑफ x इक्वल टू g ऑफ f ऑफ x।
Differentiating with respect to x on both sides, we get v dash x equal to g dash f of x into f dash x because of composite function। फिर से देख लो कि d by dx हम करेंगे g of fx, that is g dash fx मिलेगा into d by dx of f of x becomes f dash x। So therefore v dash x equal g dash f of x multiplied by f dash x। Put x equal to 1 on both sides. You can write here, if you want x equal to 1, put x equal to 1 on both sides. So therefore v dash 1 equal to g dash f of 1 multiplied by f dash 1 and let it be equation number 6। अब हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर f dash g dash f of 1 and f dash 1 ये इनके वैल्यूज हमें चाहिए और देखते हैं कि कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट होती है कौन सी नहीं। Let it be equation number 6। Since f of x equal to 2x, अब देखो इस टाइम हमें क्या लेना है f of x equal to 2x, क्योंकि हमें इस बार जो वैल्यू चाहिए f of 1 की वैल्यू चाहिए और ये रेंज है 0 is less or equal x is less or equal to 2। Therefore f of 1, put x equal to 1 directly on both sides, so f of 1 equal to 2 into 1 equal to 2, 0 is less 1 is less 2, क्योंकि यहाँ पर हमें रेंज जो दिखानी है वो 1 की है, तो 0 इज लेस 1 इज लेस 2। देयरफॉर v डैश 1, अब हमें ये f ऑफ 1 क्या मिला 2, ये f ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 v डैश 1 इक्वल टू g डैश 2 इंटू f डैश 1, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे f ऑफ 1 के प्लेस पर ये 2 एंट्री कर दिया, तो v डैश 1 एज इट इज g dash 2 here multiplied by f dash 1 from equation 6। अब देखते हैं gx के लिए, since g of x equal to 6 minus 3x, 0 is less or equal x is less or equal to 2। डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें g डैश की वैल्यू चाहिए इसके लिए हम यहाँ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये देखो 2 g डैश 2 है यहाँ पर, इसके लिए हम 0 to 2 वाला रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट g डैश x equal to derivative of 6 is 0, derivative of minus 3x is minus 3 into 1, that is minus 3। So simplifying we get minus 3, g dash x equal to minus 3, put x equal to 2 for this value। देखो यहाँ g dash 2 है, तो put x equal to put x equal to 2 in this equation। So therefore g dash 2 equal minus 3 because here no term of x, तो it is constant function, एक constant function के जैसा बिहेव करेगा ये। तो हमने कांस्टेंट फंक्शन के जैसा ट्रीट कर लिया, तो क्या मिला g डैश 2 इक्वल टू माइनस 3, और ये हमारा g डैश 2 इसको हम एज्यूम कर लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है इसका, कि g डैश 2 अगर माइनस 3 आता है तो आगे का देखते हैं कि इसके दूसरे फंक्शन में क्या मिल रहा है, क्योंकि देखो ये 2 लेस x इज लेस आर इक्वल 7, 2 लेस x इज लेस आर इक्वल टू 7, तो हमें gx का भी फंक्शन चेक करना पड़ेगा। सिंस gx इक्वल टू 2x माइनस 4/3, 2x माइनस 4/3, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो g डैश x डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ gx इज g डैश x इक्वल डेरिवेटिव ऑफ 2x 2 माइनस 0 एंटायर अपॉन 3, तो 2 माइनस 0/3 दैट इज 2/3। तो देयरफॉर g डैश 2 इक्वल टू 2/3, देखो हमने g डैश 2 एक वैल्यू हमें यहाँ पर मिली जो कि माइनस 3 है, लेफ्ट हैंड लिमिट अज्यूम किया, और इसको g डैश 2 एक में मिला 2/3 फ्रॉम द सेकंड फंक्शन एंड लेट इट बी राइट हैंड लिमिट। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 8 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 9 व्हाट वी गेट, लेफ्ट हैंड लिमिट L फॉर यहाँ पर एज्यूम करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट L ऑफ g डैश 2 इज नॉट इक्वल टू R ऑफ g डैश 2। R मतलब यहाँ में राइट हैंड लिमिट, जो यहाँ पर RHL लिखा गया है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट g डैश 2 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट g डैश 2 एज
-2 इज नॉट इक्वल टू 2/3, ये इसका रीज़न है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि वाई, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो उसका रीज़न बोलो, वाई इट इज़ नॉट एग्जिस्ट, वाई इट डजेंट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट नहीं है तो क्या करोगे, एज -2 इज नॉट इक्वल टू 2/3, देयरफॉर g'2 डज नॉट एग्जिस्ट। अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो g'2 डज नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर v'1 डज नॉट एग्जिस्ट, यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7, क्योंकि इक्वेशन नंबर 7 में हमारा ये रिलेशन मिला था, यहाँ पर देख सकते हो कि v'1 इक्वल टू g'2 मल्टीप्लाइड बाई f'1। लेकिन ये g'2 की अगर हमारे दोनों वैल्यू सेम आ जाते, यहाँ पर फिर से इसको समझ लो, क्योंकि यही पार्ट इसमें थोड़ा सा क्रिटिकल पार्ट है कि g'2, देखो g'2 के एक वैल्यू मिलती है मुझे -3 और दूसरी वैल्यू आ जाती है 2/3। ये रीज़न है इसमें कि अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती तो एग्जिस्ट हो जाता, क्योंकि ये वैल्यू दोनों डिफरेंट है, हम इसमें से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों वैल्यूज अपनी तरह अपने प्लेस पर वैलिड हैं। और हमें ये वैल्यू रखना था कहाँ पर, हमें v'1 में रखना था, तो हम यहाँ पर कोई एक वैल्यू नहीं रख सकते। ये रीज़न है, इसके हम 2 डिफरेंट वैल्यूज भी नहीं लिख सकते। तो g'2 डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर v'1 डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमें u'1 तो डिफाइंड मिला और उसकी वैल्यू भी मिल गई थी, लेकिन v'1 ये डिफाइंड नहीं हुआ और एग्जिस्ट भी नहीं हुआ। तो आगे चलते हैं अभी नेक्स्ट वन के लिए। अब हमें देखना है कि w'1 ये कैसे मिलता है। सिंस wx इक्वल टू g ऑफ x, सिंस wx इक्वल टू g ऑफ x, differentiating with respect to x on both sides, therefore w dash x equals derivative of g of x, g dash g of x into d by dx of g of x because of composite function। फिर से देख सकते हो, therefore w dash x means derivative of wx, here w dash x equal g dash g of x multiplied by d by dx of gx, therefore w dash x equal g dash g of x multiplied by g dash x, derivative of d by dx of gx becomes g dash x, therefore w dash 1 equal to g dash g of 1 multiplied by g dash 1 and let it be equation number 10। यहाँ पर 1 कैसे आया, पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स, वी वांट w dash 1 तो वी नीड टू पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स, यहाँ पर पुट x इक्वल टू 1 ऑन बोथ साइड्स, तो देयरफॉर w dash 1 इक्वल g dash g of 1 मल्टीप्लाइड बाई g dash 1 इक्वेशन नंबर 10। अब देखते हैं इसमें कौन से फंक्शंस आते हैं और इनकी रेंज कौन सी आती है। तो ये फंक्शनल पार्ट जैसे भी यहाँ पर आएगा उसको हमें उसी के अकॉर्डिंग रेंज लेना है। सिंस g of x इक्वल टू 6 माइनस 3x, 0 इज लेस आर इक्वल x इज लेस आर इक्वल टू 2 बिकॉज ऑफ 1, क्योंकि 1 है ये 0 टू 2 के बीच लाई करता है, इसके लिए हमें ये फंक्शन लेना है 6 माइनस 3x, differentiating on both sides with respect to x, therefore g dash x equal 0 minus 3 into 1 equal to minus 3, write the same range 0 is less or equal x is less or equal to 2। ये तो हो गया अपना g dash x, तो g dash x equal to minus 3, also gx की वैल्यू में क्या लेना है बिटवीन 2 to 7 कि gx equal to 2x minus 4/3, 2 is less or equal x is less or equal to 7। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो वैल्यू यहाँ पर बाद में मिलेगी। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स वी गेट
Derivative of gx, g dash x equal to 2 into 1 minus 0 because derivative of 4 is 0. Therefore 2 as it is, derivative of x is 1 and derivative of 4 is 0. So numerator becomes 2 into 1 minus 0 entire upon 3. Simplifying we get 2 by 3. 2 is less x is less or equal to 7. तो अब इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि g dash 3 तो g dash 3 equal to 2 by 3. 2 is less x is less or equal to 7. क्योंकि अगर हम यहाँ पर वैल्यू 3 पुट करते हैं, यहाँ पर देखो अगर हम यहाँ पर 3 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर g dash 3 equal to 2 by 3 बिकॉज नो टर्म ऑफ x, कांस्टेंट फंक्शन है तो g dash 3 equal to 2 by 3. g of 1 ये डायरेक्ट हमें कहाँ रखना है, g of x में यहाँ पर रखना है. देखो g of 1, तो g of 1 के लिए हमें क्या करना है, पुट x इक्वल टू 1 इन दिस इक्वेशन. ध्यान से देखना है, g of 1 इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू 1. तो g of 1 becomes 6 minus 3 that is 3. 0 is less or equal x is less or equal to 2. Therefore g dash 1 equal to since g dash 1 equal to minus 3, it is already हम लोगों ने फाइंड कर लिया है कि g dash 1 equal to minus 3. यहाँ से देख सकते हो कि g dash x equal to minus 3 है. तो अगर हम लोग g dash 1 पुट x equal to 1 करोगे तो हमें क्या मिलेगा, g dash 1 equal to minus 3. क्योंकि 0 to 2 है, रेंज भी देखना है कि हमें 1 लेना है तो 0 से 2 वाला लिमिट लेना है, 3 लेना है तो 2 से 7 वाला लिमिट लेना है. क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही ध्यान देनी है कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फंक्शन, so it is not a normal question but easy. लेंदी सोल्यूशन है थोड़ा लेकिन इजी है, क्योंकि जब भी हमें 3 लिमिट लेनी है g dash 3 तो हमें ये रेंज में देखना है और इसकी वैल्यू 2 by 3. और जब हमें g dash 1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो माइनस 3 लिखना है और 0 to 2 का रेंज सेलेक्ट करना है, क्योंकि 1 इसके अंदर आएगा और 3 इसके अंदर आएगा. तो इस तरह से देख सकते हो कि g dash 3, फिर से रिपीट करता हूँ, g dash 3 इक्वल टू 2 by 3, g of 1 3 एंड g dash 1 इक्वल टू माइनस 3. तो फ्रॉम इक्वेशन 10 अब देख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 10 w dash 1, इक्वेशन नंबर 10 यहाँ से देखा जा सकता है w dash 1 इक्वल टू g dash g of 1 इंटू g dash 1. ये इक्वेशन नंबर 10 है, हम ये सभी वैल्यूज यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. तो वी गेट w dash 1 इक्वल टू g dash 3 इंटू g dash 1 एज g1 इक्वल टू 3. g of 1 क्या मिला था, 3, इसके लिए यहाँ पर 3 लिखा गया. Therefore w dash 1 इक्वल टू, अब g dash 3 का वैल्यू क्या है, g dash 3 इज 2 by 3. यहाँ पर देख सकते हो g dash 3 इक्वल टू 2 by 3 एंड g dash 1 इक्वल टू माइनस 3. तो w dash 1 इक्वल टू 2 by 3 इंटू माइनस 3, 3 गोइंग by 3. Therefore w dash 1 इक्वल टू माइनस 2. तो इस तरह से हमें u dash 1, v dash 1 एंड w dash 1 ये ऑल द 3 आंसर्स इजीली मिल गए. अब इसका फाइनल आंसर यहाँ पर नोट कर लेना है. u dash 1 इक्वल टू 3/4, v dash 1 डज नॉट एग्जिस्ट एंड w dash 1 इक्वल टू माइनस 2, जो अभी अभी हमें मिला. तो u dash 1 डिफाइंड and its value is 3/4, or you can say u dash 1 exists and its value is 3/4. v dash 1 does not exist, w dash 1 exists and its value is minus 2. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये आज का क्वेश्चन यहाँ पर एक कंप्लीट हो गया. और ये क्वेश्चन अपना जो है डिफरेंशिएशन का, जबकि वो चैप्टर हो चुका था लेकिन ये क्वेश्चन पेंडिंग था, तो ये क्वेश्चन को अभी मैंने कंप्लीट कर दिया है. तो डियर स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस और इस नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलते रहेंगे. और आप बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, तो हमें जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाएगी. और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें. रिमेनिंग क्वेश्चंस
के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये क्वेश्चन और प्रीवियस वीडियोस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।